without wasting a minute, let's directly jump to some of the common coding doubts. Let's start with number 1. So a student has asked me, can a civil engineer placed as a software engineer? Because many startups and product-based company only allow CS degree. So student का डाउट ये है कि मैं किसी भी ब्रांच का हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल सकती है या नहीं? इसका आंसर सिंपल है, हाँ मिल सकता है। आपने सुना भी होगा। What different we are going to do right now is हम खुद जाके जॉब ओपनिंग्स देखेंगे और मैं आपको अच्छे कंपनीज का भी जॉब ओपनिंग्स दिखाने वाली हूँ जहां पर ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं होता। Let's start. So this is for Goldman Sachs where you will see कि इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम में इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जस्ट ग्रेजुएशन। They have clearly mentioned here that they are looking for all engineering students in India across pre-final and final year of graduation. Nowhere branch is specified here. Similarly, you can see for Adobe, I have searched here for software development engineer, and when you go to eligibility, you will see they are just saying कि preferred qualification in BE, BTech, MCA or MTech. Nowhere branch is mentioned here. Also, people from MCA background who keeps asking the question, this is for you. Now, क्या इसका ये मतलब है कि सारे जॉब ओपनिंग्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती ब्रांच की? No. There are multiple job openings जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको दो यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ब्रांच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है. सो व्हाट वी नीड टू गो एंड डू इज जस्ट फाइंड दोस अप्रोप्रिएट जॉब ओपनिंग्स फॉर अस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन एज अ फ्रेशर. Now this is a very good question. I'll again show you this with help of a demo. Let's go. So here is this guy, Saurabh. What he does is, he's a video editor, and in order to highlight his skill, he just edits videos of different person. Like you can see bigger influencers like Aman Dhattarwal or Ranveer Alabadia, or even for companies he edits like Facebook, Viral Fever and etc. Like his main aim is to just highlight his skills through his profile, and that is what he is successfully doing. I'll show you one more example. Here is a guy named Sahil. He is basically a UI UX designer. So basically what he does is he put two types of UI here and ask for feedback that which one is better, if you see. And he is getting like huge traction over his profiles, if you can see. So being a fresher, our goal should never be traction. Rather, how we can highlight our skills, get different job opportunities, maybe connect with different people for getting referrals. And we will be able to do that only by having a very good LinkedIn profile. So make sure whatever you do, might be it would be related to coding or winning a hackathon competition or some of your learnings, just document it in this way, like you just saw for UI UX designer or the video editor. Make sure you do not spam it. Like just don't go and put anything, but put relevant as you just saw. Now let's move on to our third question. Now the question is, मैं कितना भी स्टडी करूं, कोडिंग का आता ही नहीं. मीन्स मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या है, बट उसका कोड नहीं कर पाती. नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता था जब मैं प्रिपरेशन करती थी इन माई अर्ली डेज. आई टेल यू ऐसा होता क्यों है. नंबर 1, हम क्वेश्चंस देखते हैं पर हम उसे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते. लाइक ज़्यादा टाइम नहीं देते, डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई नहीं करते, तुरंत गिव अप मार देते हैं और सोचते हैं चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं. अब फिर एक गलती करेंगे, ये जो नंबर 2 है. सॉल्यूशन देखते हैं तो लगता है ओ शिट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो मेरे से हो जाना था, बस किसी रीजन से नहीं हो पाया. एंड हम उस सॉल्यूशन को अब कोड नहीं करते. लाइक देखने के बाद कोड नहीं करते हैं, बस पढ़ के सोचते हैं कि समझ आ गया, कर लूंगा या कर लूंगी मैं नेक्स्ट टाइम आएगा तो. एंड यही गलती होती है, नेक्स्ट टाइम वापस वो क्वेश्चन आता है एंड हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने उस वक्त देखा था, पढ़ा था, बट एक्चुअली हम उस चीज को ब्रेन में डाइजेस्ट अभी नहीं कर पाए थे पूरे तरीके से, उस सॉल्यूशन को हम इंप्लीमेंट नहीं करे थे. सो व्हाट वी नीड टू डू इज नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें पहले उसे फुलेस्ट ट्राई देना है, डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करना है, ताकि जब सॉल्यूशन देखो ना एकदम से समझ में आ जाए कि शिट, ये छोटी सी चीज थी जो मिस हुई थी, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था. इट शुड नॉट बी लाइक कि यार ठीक है समझ गए इजी है, ये चीज नहीं. वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट यार ये मिस हुई, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ, एंड अब मैंने ये चीज सीख ली, खुद से कोड करके देख लिया, नेक्स्ट टाइम ये मुझे ध्यान रहेगा. और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखने के लिए एक और चीज हम कर सकते हैं कि यार इस क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक चीज हम मिस किए थे, हम उसको अपने रिवीजन नोट में मतलब लिख सकते हैं, सो दैट हम थोड़े इंटरवल पे उस रिवीजन नोट से रिवाइज करते रहे एंड वो चीज हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाए. अब कोई भी सिमिलर सा क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पे उससे रिलेटेड अप्रोच लग रहा होगा, वी वुड डेफिनेटली बी एबल टू अप्लाई इट. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. CP rank matter to get referral or good projects. Now this is again a very good question. I'll tell you. Basically आपके रिज्यूमे में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हाईलाइट करे. इट कैन बी योर गुड प्रोजेक्ट्स और इवन इट कैन बी योर गुड CP स्कोर. दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. ओके, मेक श्योर आप CP कितना भी करो, बट आपके रिज्यूमे में कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट्स एडेड होने ही चाहिए. हो सकता है बहुत एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, बट डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट्स एडेड होने चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू हाईलाइट कि आपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ इस डोमेन में कर रखा है.
आप सीपी ज्यादा कर रहे हो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपके कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपके रेज्यूमे को एक एज मिल रहा है कि अच्छा इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में आपकी इतनी रैंक है या वॉट एवर दैट इज। बट या दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर इंटरेस्ट इज। देयर इज नो एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही चूज करना है यही चूज करना है। इट्स जस्ट दैट मेरा पर्सनल थोड़ा बायस है प्रोजेक्ट्स को लेके, बिकॉज वो वाली जो स्किल है वो जब हम एक बार कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ स्टूडेंट हैज आस्क्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस टू डू पर टॉपिक। दिस इज अगेन अ मिस्टेक आई वांट टू शेयर विथ यू जो मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में करा था। आई टेल यू, मैंने एरेस पढ़ना शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट एरेस को ही मैंने मतलब 200-250 सवाल एरेस पे लगा लिए सोच के कि यार ये टॉपिक मैंने अभी थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिकली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब उसमें दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ दिक्कत हुई कहाँ से। ज्यादा क्वेश्चंस लगाने के चक्कर में आप जनरली दो चीजें कर रहे हो, मतलब जो ज्यादातर लोग हम कर रहे हैं। पहला आप प्लेटफॉर्म स्विचिंग करोगे, मे भी चलो आपने इंटरव्यू बिट पे लगा लिए सारे एरेस के, फिर आपने कहा चलो लीड कोड से लगा लेता हूँ, फिर GFG से लगा लेता हूँ, हैकर से लगा लेता हूँ, ऐसे करके आपने प्लेटफॉर्म स्विचिंग शुरू कर दी। और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, आप मल्टीपल जगह शायद प्रैक्टिस रिविजन कहीं भी ये चीज कर रहे होगे, अवॉइड इट। ये आपके प्रोग्रेस को हैम्पर करने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप देखोगे तो क्या हो रहा होगा कि आप कुछ सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सेकंड, लेट्स से मैं अपनी चीज बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैं GFG पे क्वेश्चंस कर रही थी उस वक्त, और मैंने क्या किया यार, मैंने इजी से शुरू किया। जब मुझे समझ में आ रहा है कि यार इजी क्वेश्चंस अब मुझसे हो रहे हैं आराम से, सो व्हाट आई शुड हैव डन इज कि मुझे इजी से मीडियम पे अब जंप करना था, बट आई डिडंट डू इट। मुझे लगा कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो करते गई एंड मैं लिटरली अगर मैं 200-250 में बोलूंगी तो मेरे इजी क्वेश्चंस ही ज्यादा थे और मीडियम और हार्ड वाले कम थे। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। व्हाट माई इंटेंट हियर इज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं। आप 50 क्वेश्चंस ही करो, पर मेक श्योर वो 50 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस करो, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस करो, सो दैट इट वुड हेल्प यू, रादर देन कि यार किसी ने बोल दिया कि 100 सवाल करने हैं, 20 सवाल करने हैं, 30 सवाल करने हैं, उतने करके हम सेटिस्फाइड हो गए कि चलो हमने तो ये चीज कर ली है ना। ऑल्सो ये क्वेश्चन आप पे भी डिपेंड करेगा, हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन के बाद ही आपको समझ में आने लगी हैं इजी वाले, एंड आप मीडियम पे जंप कर सकते हो सकता है कि आप 50 कर चुके हो फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको थोड़ा और करने की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट हियर द आंसर इज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू? ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS पढ़ना ही पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सिस्टम डिजाइन आई टेल ऑप्शनल, क्योंकि कुछ कंपनीज अब फ्रेशर से पूछने लगी हैं इसलिए मैंने इस लिस्ट में ऐड किया है, बट स्टिल आई टेल ऑप्शनल। एंड द लास्ट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट। दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ऊप्स कॉन्सेप्ट हमें पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि ये तो पक्का पूछने वाला है थियोरेटिकल चीजों में, ये तो पक्का आने वाली है। सो दैट वाज मेन ऑन द थियरी पार्ट। बाकी आपको कोडिंग और प्रैक्टिस और बाकी चीजें तो करनी ही करनी है। सो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो इस वीडियो में मैं कवर करना चाहती थी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।